Hello students, welcome back. Today we will discuss chapter 2, First World War and Russian Revolution. So let's just continue. First World War and Russian Revolution. The yearning of the Western European countries for expansion of the empire and acquire new territories means colonies resulted in these countries going to Asia and Africa. Thus they established their colonies and expanded their colonies, their rule. Consequently, there arose a competition between European nations to establish colonies. This great for colonization among the Western European nations caused the economic, social, and cultural ruin of the Asia African countries. The result of this onward politics was such that the First World War, Bolshevik Revolution, etc. took place. So, dear students, let's study about these details. साम्राज्य के विस्तार और नए क्षेत्रों में उपनिवेशों को हासिल करने के लिए जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनके अंदर एक बहुत ही डीप फीलिंग आ रही थी. एज ए रिज़ल्ट एशिया और अफ्रीका तक ये जो कंपटीशन की फीलिंग थी, ये जो कॉलोनाइजेशन की फीलिंग थी, ये फैल गई थी पूरी तरह से. इस प्रकार उन्होंने अपनी कॉलोनियों की स्थापना के लिए और अपने शासन को पूर्व निर्धारित किया. एज ए रिज़ल्ट यूरोपियन देशों के बीच उपनिवेश को स्थापित करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा मीन्स कंपटीशन पैदा हो गया था. वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच उपनिवेशीकरण की जो एक ग्रीड थी उसने एशियाई अफ्रीकी देशों की जो इकोनॉमिक, सोशल और जो उनकी कल्चरल वो था सिस्टम उनकी कंट्री का, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था. विश्व राजनीतिक पर इसका परिणाम ऐसा हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक रेवोल्यूशन ही इसके रिजल्ट रहे. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू these reasons in detail. Western Europe and colonialism in Asia Africa. The Western European countries wanted to expand their empire in Asia Africa. Their greed for colonization did not spare even their neighboring countries. Spain had taken control over Netherlands, Belgium, and Luxembourg. Later on, some of their provinces were captured by France when the Portuguese king died without an heir. Portugal came under the rule of the Spanish king because of his blood relation. So for 6 decades, the monopoly of establishing colonies in non-European countries was with Spain. Similarly, Italy and German states became the victim of the greed of France and Austria when the European powers were tightening their grip over the Asian and African nations. Many of European nations which had become free following the footsteps of England made many of the Afro-Asian nations their colonies. I mean to say, अफ्रीका वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एशिया अफ्रीका में अपने राज्य का एनलार्जमेंट करना चाहते थे. कॉलोनाइजेशन के लिए उसके लालच में उन्होंने अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को भी नहीं छोड़ा. स्पेन ने नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग पर अपना आधिपत्य मीन्स अपना अधिकार कर लिया. बाद में उनके कुछ स्टेट्स पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया. जब पोर्टुगीज किंग की डेथ हुई और उसका अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो पोर्टुगल को अपने ब्लड रिलेशन की वजह से स्पेनिश किंग के शासन में उसको अपने आप को मर्ज करना पड़ा. इसलिए लगभग 6 डिकेड्स तक नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में कॉलोनाइजेशन का राइट स्पेन के पास ही रहा. इसी तरह इटली और जर्मन राज्य फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के लालच के शिकार बन गए. नेक्स्ट, कॉलोनियलिज्म इन एशिया. आफ्टर स्ट्रेंथनिंग its grip over India, England expanded its empire to Sri Lanka, Myanmar, Singapore, and Malaysia. England entered China also, but due to the opium trade between England and China, there were wars 1839-1842, which came to be known as Opium Wars in history. China lost
this war and thereby lost 5 of its ports to England, where England could carry on their trade and thus expanded their empire, taking advantage of China's weakness. Japan, Russia, Germany, France, Belgium, and America also acquired trade and political rights. Enormous oil resources in the desert region of West Asia attracted the European to establish colonies there. England, Germany, Russia, and America established oil companies in Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Bahrain and made efforts to take care of their own interest. इसी तरीके से इटली और जर्मन राज्य फ्रांस और ऑस्ट्रिया के लालच के शिकार बन चुके थे। जिस समय यूरोपीय शक्तियां एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रही थी, उसी समय कई यूरोपियन कंट्रीज जो फ्री हो चुके थे इंग्लैंड की पॉलिसी को फॉलो करने लगे और इंग्लैंड की पॉलिसी को फॉलो करते हुए अफ्रो एशियन नेशंस में अपनी कॉलोनीज उन्होंने बनाई। भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद इंग्लैंड ने अपने साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर व मलेशिया में किया। इंग्लैंड ने चीन में भी एंट्री की, लेकिन इंग्लैंड और चीन के ओपियम वॉर यानी ओपियम मीन्स अफीम के कारण वॉर हुआ जो 1839 से 1842 में हुए, जिसे हिस्ट्री में ओपियम वॉर के नाम से जाना जाता है। चीन ये युद्ध हार गया और जिसकी वजह से उससे अपने 5 पोर्ट्स इंग्लैंड को देने पड़े, जहां इंग्लैंड ने अपने ट्रेड को स्मूथली चलाया और अपने जो उसका साम्राज्य था उसका भी एनलार्जमेंट किया। चीन की वीकनेस का फ़ायदा उठाकर जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और जैसे कि ट्रेड तथा पॉलिटिकल राइट्स को भी हासिल किया। नाउ colonialism in Africa. The Dutch established its colony for the first time at the end of 15th century in South Africa. After that, England and France established their colonies in Cape and Algeria in North Africa. Western Asia के डेजर्ट एरिया में एनॉर्मस ऑयल रिसोर्सेज ने यूरोपियन को वहाँ स्थापित होने के लिए अट्रैक्ट किया। मीन्स वहाँ पे जो डेजर्ट एरिया था वहाँ पे ऑयल के रिसोर्सेज थे, जिसकी वजह से वो उनको लगा कि ये बहुत ही प्रॉस्पेरस एरिया है, बहुत ही सुटेबल है। इंग्लैंड, जर्मनी, रूस और अमेरिका ने ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन में ऑयल की कंपनी सेटअप की। डचेस ने 15th सेंचुरी के अंत में फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में अपनी कॉलोनी की स्थापना की। उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने नॉर्थ अफ्रीका के कैप और अल्जीरिया में अपने उपनिवेश स्थापित किए। देन the vast province of Africa seemed quite suitable for acquiring raw material and selling ready products post-industrial revolution, because of which European countries competed to establish colonies. King Leopold of Belgium seized the vast province of Congo and established his rule. England established its colonies in Egypt, some province of East Africa and some of South Africa. France established its colonies in Tunisia, Morocco and West Africa province. Germany established its empire in some province of East and West Africa. Italy captured the Africa provinces around the Red Sea. Spain and Portugal also seized some provinces of Africa. A conference for the European nations was held in Berlin 1884 to 1885. In the midst of this competition to establish colonies, different African territories were divided among the European nations at the end of the conference. Thus, the colonial dominance of different European nations was established over the entire Africa. So, अफ्रीका के विशाल जो प्रांत था उसका एरिया, उसको रॉ मटेरियल की प्राप्त करने के लिए तथा जो इंडस्ट्रियल के जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स थे उनकी सेल के लिए बहुत ही सूटेबल प्लेस माना जा रहा था, क्योंकि यूरोपीय देश के बीच में कॉलोनाइजेशन को लेकर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बेल्जियम के लियोपोल्ड किंग
ने कॉन्गो के विशाल क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। इंग्लैंड ने मिस्र पर ईस्टर्न अफ्रीका के कुछ प्रांतों और साउथर्न अफ्रीका के कुछ हिस्सों में कॉलोनीज बना ली थी। फ्रांस ने ट्यून मोरको और नॉर्दर्न अफ्रीका प्रांतों में उपनिवेश किया। जर्मनी ने ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इटली ने रेड सी, स्पेन के आसपास कब्जा कर लिया और पोर्टुगल ने भी यूरोपीय राष्ट्रों के लिए अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1884 टू 85 में यूरोपियन राष्ट्रों के लिए बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां इस सम्मेलन के अंत में विभिन्न अफ्रीकी क्षेत्रों को यूरोपीय देशों के बीच में विभाजित किया गया। विभिन्न यूरोपियन राष्ट्रों को उपनिवेशकों के प्रभुत्व को पूरे अफ्रीका में स्थापित कर दिया गया। सो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।